you'll get a chance, what changes you will bring in the industry? I will really give chance to more women producers and directors. जानना होता है जो आज मेरे सामने बैठा है ना, वो क्या क्या देख के आया है. I think journey तो सब perfect नहीं होता. I have always called my journey sweet and sour. Film industry में आगे तो sour होने लग गई. कोई भी शहर ऐसा नहीं है बॉम्बे जैसा है. ऐसा बोलते हैं लोग तो शायद इसमें कोई बात भी होगी. Bombay has made me very strong person. लोगों को मैंने ना बहुत मिसयूज ऑफ पावर करते हुए देखा है. आदमियों को. Welcome to Impact Stories. First of all, अब मुझे लगता है. First of all, I really like the name of the podcast. Really? Impact Stories, yeah. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मेरा ये है कि मैं किसी की जर्नी ना पूछूं तो मुझे लगता है वो अधूरा रहता है. शुरुआत पहले लोग कहीं से भी कर देते हैं, मुझे ऐसा नहीं होता. मुझे जानना होता है जो आज मेरे सामने बैठा है ना, वो क्या क्या देख के आया है. Let's start from the beginning. हाँ, जिंदगी में क्या क्या देख के आया है. I think journey तो सबकी perfect नहीं होती किसी की भी. I have always called my journey sweet and sour. Sweet थी काफी टाइम तक, फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तो sour होने लग गई. But of course, I came with a passion to be an actor. Very, very tough and difficult journey, to be very honest. Lot of times in my 12, 13 years of career, if I include my South, the years I worked in South, I decided to quit 2-3 times. I thought that it's too tough, it's too difficult, I'm not able to do it, let's just go back. And I don't know what made me stay, what didn't make me quit, because I had all the reasons to quit. जो काम चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, जैसा काम करना चाहती थी वो बहुत कम आ रहा था. दो वो you know, the kind of stuff I wanted to do in Bollywood, that's very less. People don't make that kind of stuff on a very grand level. और जो मिल रहा था वो मैं मना कर रही थी. So it was a very difficult choice to stay when it was getting difficult to survive also. I don't know what kept me going. I think nothing has really changed in last 4-5 years. तब भी मैं वैसी movies ढूंढ रही थी, अब भी मैं वैसी movies ढूंढ रही हूँ. थोड़ा सा आई थिंक अगर 90% मुश्किल था, अब 70% मुश्किल हुआ है. बट आई एम हियर टू स्टे बिकॉज द फायर एंड द पैशन इन मी फॉर एक्टिंग इज ह्यूमंगस. एंड आई थिंक जब तक वो फायर और पैशन एक एक्टर में नहीं होती, वो इस इंडस्ट्री में रह नहीं पाता. पर्सनल जर्नी तो हमेशा एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हम एक्टर्स की ना पर्सनल जर्नी खत्म हो जाती है. सो दैट हैपेंड टू मी इन 2016, स्पेशली द सिटी बॉम्बे. And especially when you're trying to make it. मैं जब 2016 में यहाँ पे आई थी, I was so engrossed in finding work, struggling, looking for movies, finding out casting कहाँ पे हो रही है, मैं किसको अप्रोच करूँ, कौन क्या पिक्चर बना रहा है, कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ भूल ही जाते हो. ये तो मैं मानता हूँ. And that happened to me. For 4-5 years, I was single. I was not dating anybody, and I was at an age when I should have gotten married because लड़की की एक एज होती है, मतलब 30, 31, 32 में शादी करनी चाहिए. वो भी लेट हो जाए. I think वो भी लेट है, तो लेबल according to Indian standard. But I got so engrossed in my professional life कि मुझे पता ही नहीं वो 32 से 38 चला गया. It's just a flash. It just went. Didn't date anybody. Was just looking for work, and suddenly you wake up and you realize कि fuck, you know, you lost all your time looking for work. So, you know, you consciously have to make that effort to give time to your personal life. And I started doing that 2 years back. I consciously started making effort to give time to my personal life. So, ये actors हम लोग भूल जाते हैं, अपनी personal life भूल जाते हैं, which is very bad. वैसे ऐसा क्यों बोला आपने कि मैं अगर आज से पीछे अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शायद ये करियर ना चुनती? बिकॉज मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ जो बोलती हूँ कि एक्टिंग के सिवा तो हमें कुछ आता नहीं है. यू नो, आई again and again I've seen so many actors saying the same line कि we don't know anything else besides acting. Why don't I don't think so I'm one of them. The world is big, and especially now there are so many opportunities to go out in the world and do something. The kind of success what I wanted, I've not gotten it in this industry. The kind of success I deserved also, I think I've not gotten it in this industry.
मैं न्यूज़ रीडिंग करना चाहती थी, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, मैं बहुत बारी सोचती हूँ अगर मैं वही चीज़ कंटिन्यू करती हूँ, I think I could have been another Barkha that I'm a fan, or I know I'm a fan again. So because that was the passion, and probably उसमें fight थोड़ी कम होती. So मुझे ऐसा लगता है कि मैं quit कर देना चाहिए था, because I had this thing कि मैं कुछ और कर लूँगी यार. I mean, this is not the end of the line. मैं आज भी ये सोचती हूँ that tomorrow if I don't get movies, this is not my bread and butter. This is not the end of my life. I will fucking go out and do something else. I will never say that I don't know anything else besides acting. If I don't know, I will learn. Actually, sometimes I must say people chase fame rather than chasing the craft. I think they get used to fame. Yes. They started as trying to chase fame, और फिर उसके बाद उन्हें उसका कीड़ा लग जाता है. Then I think they don't want to come out. And then they late realize that they are far bigger than this. ऐसा नहीं अंकित, उन लोगों का बताओ. I've seen so many people जो बॉम्बे आते हैं, जो सिर्फ 10-10, 15-15 ऑडिशंस ही देते हैं. हाँ, right. उनको कभी कुछ नहीं कर पाते. उनको कभी ऐसी बड़ी ब्रेक मिलती नहीं है. I know so many friends of mine like that. What are they chasing? उन्होंने तो फेम देखी भी नहीं अभी तक. They don't know what fame is. ये भी बात है. Yeah, but they are still in this city, not living in a very fancy way, struggling, going to auditions every day, figuring out where auditions are happening, but they are not quitting. So I'm sure there's some fire in their stomach that they are doing that. So no, it's not fame every time. वैसे ये बात तो आपसे पूछना जरूर मतलब चाहूँगा. What is Bombay and what Bombay makes you? Bombay makes you. I don't know. जैसे बोलते हैं it's कोई भी शहर ऐसा नहीं जो बॉम्बे जैसा है. ऐसा बोलते हैं लोग, तो शायद इसमें कोई बात भी होगी. अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बोलूँ तो I think Bombay has made me a very strong person. Like when I was growing up, I still remember I left my home when I was 17. I went to US. I was alone in US. That was the first time I left home. I was without my parents. And I still remember for 1 month मैं अपने dad को phone करके रोती रहती थी because I was a scared kid. मेरे से नहीं रहा जा रहा था. And I stayed in US for 5 years. I did what I had to do. But the strength that I have right now, the strength that this industry, this city has given me, even US couldn't give me. Yeah. So I think this city makes you such a strong person that you are ready for every battle. You're ready for every obstacle in life. You're just ready to face everything because this industry, it's so vile, I would say. You know, everybody wants to cut you off. Nobody wants to see you succeed. That's it. Yes. Because ये एक ऐसा शहर है, we call it a city of dreams, जहाँ से पूरी दुनिया से लोग स्टार बनने आते हैं. मैं एक्टर भी नहीं कह रही. Everybody wants to become a star. There are very few people who wants to become actors. Everybody wants to become star, and everybody wants to pull you down. If you've gotten a good film, there will be 10 actresses who would be vying to cut you out from that film and be there. So everybody wants to cut your throat. So competition इतना heavy है, struggle इतनी ज़्यादा है, fight इतनी ज़्यादा है कि you have to be that strong, hard-skinned person. And if you're not that, then this industry or the city is not for you. Why so many people say this thing that whenever I talk to someone, they say we have very less friends in Bombay. Friendship is very easy to make, but I think they say कि conditioning ऐसी होगी कि अब दोस्ती हो ही नहीं पाती. But ऐसी conditioning क्या है? Because Bombay, people don't come to Bombay to make friends, honestly. People come here. I'm from Delhi. So I've always said Delhi is a great place to live. दोस्ती तरह ही होती है ना? नहीं यार, नहीं होता. Bombay में सब काम करने आए हैं. और अगर तुम दोस्त हो ना, अगर तुम दो दोस्त हो, तुम दोनों को एक चीज़ को फॉलो करना है, एक चीज़ को हासिल करना है, I think you will cut each other off. You will. तुम दोस्ती में ये नहीं बोलोगे चल भाई तू ले ले, मैं तेरे साथ हूँ, जो दिल्ली में बहुत होता है. दिल्ली में होता है. दिल्ली में बहुत भाईचारा है. बॉम्बे में कोई भाईचारा नहीं है. बॉम्बे में behind your back they will cut you off and they will try to snatch that from you. And I think there's nothing wrong with that. That's the nature of the city. You have to be like that to be where you want to be. If you won't be like that, तुम बहुत पीछे रह जाओगे. बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते. You know, there are a lot of good-hearted souls who can't do anything wrong to people.
बट वो कुछ नहीं कर पाते फिर, और फिर इवेंचुअली उनको रियलाइज होता है कि व्हाट हैव दे लॉस्ट इन लाइफ. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. दैट्स जस्ट द कैरेक्टर ऑफ द सिटी. और वो तुमको ऐसा बना देता है. जैसे बोला ना मैंने आपको, मैं 20 साल पहले कोई और लड़की थी, अब मैं बिल्कुल कोई और लड़की. अब मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन करने वाला हूँ. मैंने कहा अगर 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 नहीं अगर यही बात है, गुड हार्टेड वाली बात है, तो अगर वो लोग पीछे रह जाते हैं तो जो लोग ऊपर बैठे हैं वो कैसे ऐसी बात कर लेते हैं कि मतलब अच्छाई की बात बहुत करते हैं. अगर उन्हें ऐसे कट थ्रोट की बात आप कर रहे हो तो आगे बढ़े हैं, लाइफ में कोई अचीव किया है, तो फिर वो मतलब वो अच्छाई की बस बात करते हैं. यार मैं एक चीज तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलूँगी, अपने बिलीफ से बोलूँगी, जो ऊपर पहुंचे हैं ना वो बहुतों को मार के ऊपर पहुंचे, बहुतों को मार के ऊपर पहुंचे. और ऊपर पहुंच के लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी सक्सेस एंड व्हेन यू डन सो मच रॉन्ग, you just become a nice person. You won't stop somewhere. You know, कहते हैं ना, you just come into a zen mode. I have seen people who come to a zen mode who become very wise at the top of their career. So एक change भी आता है. बिल्कुल. एक journey वैसी journey lead करके एक change भी आता है. But people, there are a lot of stars who've gotten success without struggle. You know, there are a lot of actors who have gotten success of stardom at the age of 28, 29, when they've started at 25, 26. They don't know what life is. When they talk about happiness, they are faking it out. Right. They are totally faking it out. When today Shah Rukh Khan talks of wisdom and being nice, he genuinely means it because he has seen so much. He has done so much. He has become so zen and wise in his self कि वो जो बोलते हैं ना, सुनो और उसको फॉलो कर. But not the young ones. एक और चीज़ जो मतलब मुझे थोड़ा सोचने मजबूर करती है वो है कि मैंने, क्योंकि मैं भी पार्ट बहुत एंगेज नहीं रहा, बट हाँ थोड़ा बहुत आसपास रहा हूँ तो मुझे पता है, आसपास रहा हूँ तो मुझे पता है बात. लोगों को मैंने ना बहुत मिसयूज ऑफ पावर करते हुए देखा है. लोगों को? हाँ. मैं बहुत ही घटिया आंसर दूंगी इसका. हाँ बिल्कुल कोई बात. आदमियों को. हाँ एग्जैक्टली. अब तो सभी बराबर है. I always say this. I don't know if it's right or wrong. It's my experience. Right. We are talking about your experience. Any man, especially man, any man in a position of power will misuse it. It gives them a certain kind of kick. So there was a talk I gave a couple of months back that I would want more women to be there at the top of their jobs, you know, CEO of the companies. Because जो आदमी का DNA है ना, वो बहुत powerful है. I'm sorry. I might sound like I'm doing man bashing here. मेरे podcast में है. I'm not doing man bashing. But the DNA of a man and a woman are very different. Yeah. तुम एक औरत को उस पोजीशन में बिठा दो, वो मुझे फिर फनी लग रहा है. क्यों आदमी को बिठा के वो मिसयूज कर रहा है, उसको पावर अंग्रेजों से मजा आता है कि अपनी पावर का तो इस्तेमाल करो. I believe but on certain level ऐसा, मतलब या तो हो सकता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे इनिशियल डेज पे ना हर आदमी हाथ जोड़ता है, मुझे काम चाहिए, बट जब वो कहीं पहुंच जाता है ना तो उसके ट्रू पैसा गिव्स यू अ पावर टू बी व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बी, राइट. पैसा का पावर देता है ना, क्या पावर देता है, तू कुछ कर सकता है. देन ही शोज हिज ट्रू कलर. आई वांट टू बी नाइस विद पीपल. और वो तो असली तो बात ये थी कि वो असली में शुरुआत में यही था, वो शुरुआत में वही था वो. बट वो ये ना, जब आप शराब पी लेते हैं तो आप जो निकलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है. होती है. Yeah, I agree to you on that. Yes. So I think misuse of power, whatever you're saying, I can see in both ways. I have seen. मैं जेंडर बायस नहीं हूँ इस बारे में, मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये देखा हुआ है, तो वो होता है मैं आपकी राय तो जानना. बट जो पहला जवाब था, मैं जो कह रहा हूँ पैसों से इंसान जो कुछ बन जाता है तो वो असली दिखाता है. वो कोई भी हो सकता है. Yeah, that is a completely different thing. अच्छा, okay. That is a completely different thing. हाँ चलो मान ली बात आपके. हाँ, talking about the DNA level, on a DNA level. अगर पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास, बट तुम एक पोजीशन में बैठे हो, तो उसमें एक औरत होगी और एक आदमी होगा who is more prone to misuse his power. I would say a man. 3 men are shooting this thing and then okay. But हाँ ठीक है, मतलब I agree on this because मैंने प्रॉब्लम क्या है ना, ये बात तो हाँ आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात भी है कि जिस लेवल तक एक मर्द को मैंने जाते हुए देखा है ना, मतलब अगलीनेस साइड पे, मैंने शायद ऐसा वुमेन हैव दिस
मतलब व्हाट यू कॉल, वो होता है ना एक सॉफ्टनेस है उनके अंदर फिर भी बरकरार कि मैं इससे नीचे तो नहीं गिर सकती। हाँ, ये बात पे मैं आपको अग्री करूंगा। And you know, if I talk about my industry only, Bollywood. Before this, I was working in New York. I was working in a corporate industry where my branch head I've worked in used corporate to also. hit on me constantly I've worked in corporate also, I know. without me giving him any vibes. Constant. That was a misuse of power कि मेरी junior है, मैं इसमें अपनी power दिखा. बिल्कुल. Now I worked with female, women and male producers in this industry. Believe me, when you there is an atmosphere of safety when you're working with the female producers, but when you're working with I'll give you producers, honestly, the level of safety is not there. I'll add to your answer also. So I have also worked in the corporate sector. So one of my friend, there was this girl, and she same situation which is yours, right? Okay. And that guy used to मतलब tried it best to थोड़ा सा वो It or not. हाँ right. So what happened? That girl ना, she took it in a advantage way. तो उन्होंने अपना promotion लिया, promotion लिया, and she told me frankly that I have no choice and I wanted to make it a better place. तो उन्होंने उस चीज को advantage side लेके अपना growth देखा, और ऐसा कुछ नहीं, there's something wrong that had happened. उन्होंने अपना वो देखा, and she walked out of the वो. तो मैं ये कह रहा हूँ कि this both of the side ना, coin की दोनों की side है ना, तो वो intelligent moves. I think उसे ही पता था कि ये तो हिट करता रहेगा, तो she went one day that I want to हाँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रमोशन चाहिए, कि there was no exchange of anything in between. वो जब हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा nice वे करे अपना walkout करके, तो ऐसे there's an intelligent move everybody makes. Yeah, then it's a personal choice, right? Exactly. I'm saying that we can't be on gender specific कि ऐसा होता है. आपने अपना पहलू बताया, मैंने अपना पहलू बताया. Okay, I take it. I hear you. So let's talk about this thing also. What is the not worst, I must say, what is the what have you have seen in the South, practice in the South, which you didn't like, और ये इधर in Bollywood, जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, we were talking about this thing that कोई सामने से गुजर जाता है तो हाँ. Yeah, so we all know that this industry is very patriarchal. It's very male-dominated. Again, हाँ. यार ये male bashing वाला episode तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हम काट देंगे आपका सारा पार्ट. नहीं, ठीक है. मेरी शादी होने वाली है, कई महीने लोग बोलेंगे ऐसी लड़की की ये क्लिप हम भेजेंगे उधर. bashing कर रही है. हाँ, नहीं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस है. नहीं, so this तो even if I tell you, even you wouldn't like. South में एक trend होता था. So in South I worked with all top producers, directors and actors. So I was working in a movie जहाँ का हीरो था पवन कल्याण. Pawan Kalyan is very Chiranjeevi. And the director धरनी वहाँ का director है जो बहुत बड़ा था. जब monitor होता था और वो दोनों बैठते थे, जब वो दोनों बैठते थे ना, nobody was allowed to cross them. वो उनके आगे से जा नहीं सकते थे. उनके आगे से जाना मतलब होता था they are बदतमीजी गिनाई जाती थी. They're not treating them. It's not right. So वो चीज मुझे लगा कि ये it's not even you couldn't digest treating each other equal, not even treating somebody like a human being. यार ये क्या है? आगे से अगर कुछ पूछना तो पीछे से पूछो, तुम आगे से क्रॉस ही नहीं कर सकते. What is this? So I was quite shocked when I saw that, and I saw this pattern in most of my films where I was working with top actors and top directors. It was not like that when I was working with little younger ones. But all top directors and actors had this thing कि आगे से नहीं जाना, उनके पीछे से बात करेंगे. Which I thought, ये जो हम अपने हीरोज को भगवान समझ लेते हैं, जस्ट इज लाइक भगवान समझ लिया. I think that is such a wrong flavor of our country, treating your heroes like gods. They are not God, they are not God. फिल्म जैसे दिखती है वैसे बनती थोड़ी है. Yeah, we need to stop worshipping our actors. मतलब क्या ही है, उनको क्यों worship करते हो? क्योंकि एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा है क्योंकि कहीं ना कहीं ना, जैसे कल एक बात किसी ने कही थी कि क्योंकि हम धागे को देखना जानते हैं, क्या पहना है, कैसे दिखते हैं, इतना ही देखते हैं, लेयर के अंदर झांकना नहीं जानते. और झांकना भी नहीं चाहते, सही बताओ. करेक्ट. We all, most of the people are living on a very surface level. जो दिखता है बस वही है. थोड़ा सा तो अंदर जाओ यार, खुद भी अंदर सोचो.
Now, I won't blame the system which is there in South. Right. Now, the two people who are sitting there, why can't they stop it? You know, they should stop it. They should have that wisdom about themselves. कि यार आप पीछे क्या हो, आगे आओ ना. Even actresses were not supposed to. Even I was not supposed to cross them. And it really used to bother me. I had just came from US where we see equality everywhere, yaar. Everywhere. They don't discriminate. There is no discrimination of any kind. I was coming from that atmosphere, and then I see this. कि दो actors बैठे तो उनको cross भी नहीं कर सकते. So I was really disturbed. Then I came to Bollywood. I think Bollywood is still better. It's much better than South when it comes to, I would Ethics. say, Ethics. class system. Class system, अच्छा. Class system of how you treat your entire crew. हाँ. Bollywood is better, but I would not still compare it to West. But that's okay because we are still behind them, you know, in various ways. We have to have more exposure. We have to have more education in our lower class. हमारे अभी भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाई की भी सहूलियत है. So the more exposure as a country we would get, you know, the more progressive as a minds we would become. But I think we are getting there. So ये वाली जो नॉन इक्वालिटी वाला सिस्टम था ना, ये मुझे अभी भी बॉदर करता है, ये मुझे पहले भी बॉदर करता था. एंड आई थिंक हाई टाइम वी शुड जस्ट स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वल. बिकॉज एक मूवी में जब 200 लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो वो जो 199th बंदा है ना, उसके बिना भी मूवी नहीं बन सकती. अगर एक्टर के बिना मूवी नहीं बन सकती, वो 199th पर्सन के बिना मूवी नहीं बन सकती. अगर वो छुट्टी पे चला गया तो द इंटायर सिस्टम विल फॉल डाउन. सो कम ऑन यार, स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीबडी. सो आई थिंक दैट्स स्टिल बॉदर्स मी. अच्छा, एक और जो मुझे लगता है पूछना जरूर चाहिए, क्योंकि आप जब अब जेंडर स्पेसिफिक बात किया तो कर लेते हैं कि जब एक लड़की एक इंडस्ट्री में काम करने आती है, व्हाट आर चैलेंजेस शी सी, और उसको अवॉइड करना सीख जाती है बहुत आराम से एक समय के बाद. लड़की स्पेसिफिकली लड़की के लिए ये आंसर क्वेश्चन है. मतलब लड़की हो, कोई काम करने, ऑब्वियसली फीमेल्स आर, वो वांट टू वर्क इन दिस सेक्टर. जैसे कॉर्पोरेट में आपने बात की, यू वांट टू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री. व्हाट आर चैलेंजेस शी सी फ्रॉम द स्टार्ट टू जब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसको अवॉइड करना सीख जाती हैं बहुत अच्छे से. I think film industry is the most difficult industry to get work in. तुम्हारे को हर इंडस्ट्री में किसी ना किसी स्ट्रगल, हार्ड वर्क से काम मिल जाएगा. उसी के इनसाइड काम मिल जाएगा बस. बट इस इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत मुश्किल है. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यू नो, जब मैं शूटिंग करती हूँ ना, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, यंग गर्ल्स who come and tell me that they want to become actors. I tell them don't. Please pursue some other career. बिकॉज यहाँ पे आपकी एक ऐसा विशियस सर्कल है कि तुम वही, जैसे मैंने बोला ना, तुम सालों साल काम ढूंढते रहते हो और इस होप में रहते हो कि काम मिल जाएगा, और तुम्हारे 15-20 साल गुजर जाते हैं एंड यू आर स्टिल स्टैंडिंग देयर. आई हैव सीन सो मेनी पीपल गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल्स में. मतलब people will treat you very bad. Directors, producers will not reply you, will not take your calls. You will give a great audition, but somebody who is known to the circle will get a job. I am not against nepotism. Yeah, even I am not. I think एक एक्टर का बच्चा एक्टर ही बनेगा, बिल्कुल. बट मुझे प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो नॉन डिजर्विंग होता है और उससे एक डिजर्विंग बंदे को काम मिलता है. वो इतना ज्यादा, अब तो वो इतना ज्यादा हो गया है कि it's actually very difficult right now currently to come anybody from outside and get work. Because right now the industry is full of star kids. Full everybody is किसी का बेटा, किसी का बहन, किसी की वो. So and not everybody is deserving. I'm sorry, not everybody is deserving. वो कहते हैं ना, उनको चला मूवीज दे के उन पॉलिश कर देते हैं. या पॉलिश कर देते हैं और वो इतने फेमिलियर फेस हो जाते हैं कि उनको काम मिलता रहता है. सो वो बहुत, आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू दैट. लड़कियों के लिए एक और एडिशनल जर्नी हो जाती है कि इस इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स लड़कियों का I wouldn't say that I wouldn't use the term casting couch, but every producer, most of them would want to take advantage of you in some capacity if they are giving you work. Again, misuse of power. Yeah, if they are giving you work, now it's your personal choice if you want to do it. If you don't want to do it, a lot of actresses do it because it becomes a barter. हम कुछ ले रहे हैं, हम कुछ ले रहे हैं, बिल्कुल. But again, it's a personal choice. But that's rampantly happening in the industry. Sad reality.
Very sad, very sad. So that, you know, that is the reason I say that I want to see more women producers to be heading production houses. I want to see more women directors to be heading production houses. यही नहीं, women directors ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री में. अगर गिनोगे तो 5 याद आएंगे. That's it. Such a male dominated industry. तो तुम जाओगी कहाँ? You have to fight and you have to make a space in this. I always say in this bad, ugly, big world. So there are a lot of challenges. Yeah, it's very tough. It's very, very difficult. It's a horror. It's a nightmare. So if as you said this, अगर आपको कोई मैसेज करता है तो obviously you don't want to give false hope to anyone. Yeah. But still, अगर कोई कहेगी oh she's killing my dreams, oh she's saying no to that, don't come to the industry, oh I don't want her to, ऐसे लोग बोलते हैं ना, oh yeah कि अरे ये तो मेरे को मतलब चाहती नहीं शुरुआत करना. तो क्या तो फिर आओ फेस करो और फिर देखो. कैसा तो हुआ होगा आपके साथ? अभी नहीं, अभी 4 दिन, I think 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, one of my male friends, he was staying with a friend. His friend committed a suicide by hanging himself from the balcony. So that's what I'm saying. You know, I think news में पता भी नहीं चलता the number of suicides are happening. We don't get to know. It's not out in the news. People don't talk about it. But they are huge. Why is that happening? Because you spend so many years working and the talent is there, but you're not getting work. कितना mental pressure होता होगा? Of course, you're not getting work, and when you see your colleagues getting something and you are not getting it, dude, it's very bad. It's very, very bad. So that is why I say, till the time you are not that hard-skinned, that कुछ भी हो जाए, you know, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे को कोई इनकरेज नहीं कर रहा, तुम्हारे को कोई ऑडिशन के लिए नहीं पड़ा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, you're at the lowest, मोटी चमड़ी, lowest phase of your life, but you still have it to be here, then be here. If all these things will affect you mentally, don't be here, because that will happen to you. That will happen. एक आप मतलब मैं हमेशा कोई लाइन बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ उसको आप कंप्लीट करना. अच्छा, एक बार ना मैंने कोई इंटरव्यू देखा था that Vikrant Messi was saying that a lot of producers and directors want to work with me, but the problem is बोलते तेरे पे पैसा लगाएंगे तो देखेगा कौन? या तुम नहीं, तुम्हारी मार्केट नहीं है. मार्केट नहीं, एग्जैक्टली सेम. तुम्हारी मार्केट नहीं है, तुम यू आर नॉट सेलेबल. तो फिर क्राफ्ट को कौन अप्रिशिएट कर रहा है? क्राफ्ट को तो अप्रिशिएट कर ही नहीं रहा. आवर स्टार, मोस्ट ऑफ द बिग स्टार्स आर नॉट ग्रेट एक्टर्स. I mean, come on. I mean, I will not even deny that the top actor of a country, top actors of a country, they are not great actors. But that's bad na. Now 12th year is doing good. Everybody is appreciating. But कितनी लंबी जर्नी होगी इस आदमी की अपने आप को प्रूफ करने के लिए? वही तो है sad part of the industry. I think our country is still not ready to appreciate art and actors. They are still running behind stars. And the day they will stop, I would say the day producers, directors, they will stop running behind stars and they will start giving more work to actors. I think then the audience will change. I will just give you an example of Manoj Bajpayee. I honestly feel this, we don't have a better actor. Even I feel the same. I feel we don't have. He didn't get his due till the time OTT came. I know. He started getting his due after Family Man. Who was giving him movies in the main lead? Nobody, till the time theaters were there. अब तुम अगर उनको मूवीज, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनको साइन ही नहीं करेंगे तो ऑडियंस कैसे उनको बार बार देखने जाएंगे? तुम करो ना. अगर तुम अभिषेक बच्चन पे 10 मूवीज लगा सकते हो तो मनोज वाजपेयी पे लगाओ ना 10 मूवीज. वो 10 मूवीज उनकी फ्लॉप होगी, 11वीं मूवी अपने आप उनकी हिट हो जाएगी. टैलेंट को करो ना सपोर्ट. यहाँ पे जब तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो ऑडियंस विल बी रेडी टू सी. तो एक बार ना मैं, अभिषेक भट्टाचार्य नाम है शायद उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, he's an no, he's, if I'm not wrong, I think it's Abhishek Bhattacharya. His name is, चलो I correct, एक ऐसे फ्रेम पे चलो, एक एक्टर से मुलाकात हुई थी मेरी. तो उन्होंने ना एक बात बोली थी कि चलो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि OTT आ गया, बिकॉज यूजुअली वर्क्स ऑन OTT, राइट? OTT, तो उन्होंने बोला अच्छी बात है OTT आ गया, काफ़ी लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, अच्छा हुआ, और फ्रीक्वेंटली काम मिलना शुरू हो गया. बट द डायरेक्टर्स हु वाज मेकिंग OTT का जो सिनेमा जो ये बना रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, फिर उनको ऐसा लगता है यार मैं छोटी चीज़ें बना रहा हूँ. अगेन आई वांट टू ब्रिंग द बिग स्टार कास्ट, अदरवाइज पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज मी, और ये तो मैं कब तक करता रहूँगा. तो प्रॉब्लम इज, उन्होंने बोला कि यार कोई ना बनाना नहीं चाहता,
अच्छा सिनेमा, सबको उसी रैट रेस में दौड़ना है, और जो करके भी करना चाहता है ना उसका उसे वो थक जाता है, वो कहता है अरे यार फिर मेरे को प्रूफ कैसे करूंगा अपने आप को, until टेल समबडी आई एम वर्किंग विद दिस गाय से। तो ये बस कहने की बात हो गई है। No, but you know, that's the risk as a collective industry they have to take, because we are still living in the world where, in the era where Gadar 2 works, okay, and Ghumar doesn't work. If you've seen Ghumar, it's fantastic. अच्छा, okay. Yeah, it doesn't work. हाँ. So when that happens, no, so producers get scared and they start making Ghumar and they stop making Gadar. Okay. So now what you have to do, you have to make 20 Ghumars. Let audience see that you have to take risk. And once that happens, then people will start accepting it. वो risk कोई नहीं ले रहा. वो risk I think वो risk West ने भी लिया, वो risk South ने भी लिया था कि अब उनकी movies इतना चल रही है because वो अभी तक अपनी कल्चर को ही दिखाए जा रहे हैं. They are making all culturally rooted films. वो पहले जब मैं साउथ में काम करती थी ना, मैं उनसे पूछती थी कि why do you make these kind of films? कौन देखता है? और वो मेरे को बोलते थे कि we make our movies for rickshaw वाlas and scooter वाlas because this is what our audience is. वो बना के उनकी पिक्चर चलने लग गई. हम लोग डर के we just push ourselves back because we get scared. We, as Bollywood producers, they don't have courage to give 10 flops, and then as a industry वो फिर accepted norm हो जाता है. हम नहीं करते. वो एक flop होती है तो वो वाला सिनेमा ही बंद हो जाता है. एक हिट होती है तो वही सिनेमा चलने लगता है. And on scene everybody is making big action films. अच्छा, मैं आपसे बोलूँगा कि if you get a chance, so what changes you will bring in the industry? If I get a chance, what changes? ये तो बहुत ड्रीमी पूछ लिया मैंने, बहुत अच्छा है आपके लिए. बहुत अच्छा है. एक तो I will really give chance to more women producers and directors. अच्छा, this is your first. I really समझ में आ गया मुझे की बारे में. I really want to do that. And secondly, I will ये एक्चुअली मैंने ना एक बार अभी मैंने मोदी की कॉन्क्लेव में एक टॉक दी थी. मैंने बोला था कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करती. गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती. हमारी गवर्नमेंट, Bollywood is such a soft power that we have a power to do anything by our cinema, but our government doesn't support us. लगाओ ना तुम 3,000 करोड़ लगाओ इंडस्ट्री में, क्यों नहीं करते? और वो वाला सिनेमा बनाओ जो तुम बनाना चाहते हो, जो हमारे को प्रोग्रेसिव और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. We are not doing that. If we will have some support from our government, I think we will be able to do that. Meaningful cinema banao, which will genuinely make a change in our society. That's needed, you know, because तेरे नाम जब बनती है ना, सारे सलमान खान का वो हिस्ट्री लेके घूमते हैं. जब वो पठान में जो जवान में जो बूढ़ा शाहरुख खान का स्वैग था, everybody went mad after that. जॉन इब्राहिम का वो विलन के अवतार में everybody went mad after that. तो वो किसी मीनिंगफुल तरीके से करो ना, so that it changes society in a better way. I think वो वाला चेंज मैं ज़रूर लाना चाहूँगी. और वो वाला चेंज आई थिंक अगर हमारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स में हिम्मत नहीं है ना, तो वो गवर्नमेंट के सपोर्ट करना चाहिए. इसे मैं आपको ऐड करता हूँ, शायद इस बारे में बात भी कर रहे थे. क्या होता है, जैसे मान लो सिनेमा की बात करते हैं ना, अभी हम हाई प्रोफाइल्स कम्युनिटी में बैठ के तो चाय डिस्कस करते हुए कहते हैं वाओ नोबडी इज मेकिंग अ आर्ट फिल्म, है ना, बहुत अच्छे से बोलते हैं आर्ट, नोबडी नोज हाउ टू मेक आर्ट फिल्म, नोबडी नोज दिस थिंग, दिस थिंग. We love Iranian cinema, but if we make something like that, we will not watch it. तो कितना ये कह देना आसान है, बट जब बनाने की बात हो देख कौन रहा था, नहीं में से कोई लोग नहीं देख रहे होते. Yeah, so I will again take example of my own film Safed. And I take the example of Kala. Kala is also Kala too. मतलब Kala too. I felt sad. I don't know her as an actress. I don't know. Tripti. I don't know her. Nobody knew Tripti after Kala, but everybody knew Tripti after. But I knew her because of her work. But I got to know that she is getting trending after Animal. Yeah. तो फिर मुझे surprise. Then I was surprised. मैंने बोला okay, might we haven't seen her in other works. तो उनकी कला इसलिए चली जब Animal चली. Because let's just accept it. India में अभी भी nonsense चल. हाँ बिल्कुल. Yeah, they love it. They don't talk about the art there. No, they will not. They will not even appreciate it. They will not even forget appreciating वो देखते ही नहीं. ये देखते हैं, but Hollywood का वक्त देख के ताली जरूर बजाते हैं. वो what incredible movie. समझ में भी नहीं आई. But appreciate. Yeah, correct. अपने आप बन रही है उसे appreciate नहीं करना. अपना नहीं करते. So I think this is just a facade that
you know we people are doing. वो मैं फिर से I think I will come back to my same thought कि probably because India is still हमारे इंडिया में masses बहुत ज़्यादा है. आप और मैं हम niche audience है, हम probably 10% of people है. और अगर 10% लोगों ने वो सिनेमा देख भी लिया तो क्या ही उखड़ जाएगा. 90% of the people are not watching it. So हमें उस 90% of people को कैसे दिखाना है, क्योंकि हमें वो सिनेमा बनाते रहना होगा. जब हम बनाते रहेंगे तो वो देखने जाएंगे. अब सफेद हमने बनाई, you know, with great difficulty we made that movie because nobody was supporting it because it was such a difficult topic, very different topic. No producer, no actors were supporting it. We made it, we released it, we promoted it very aggressively. It's there on Z, but I know people are still not aware of the film. Why? Because people don't want to watch it. I have my friends who have told me कि हमने देखनी शुरू करी लेकिन 15 मिनट में ना हमने बंद कर दी, बहुत सैड थी. अरे तुम बाहर की सैड मूवीज तो देख लेते हो, तुम्हारे को यहाँ पे गंदी देखने, तुम सैड मूवी नहीं देख सकते कोई. अरे सी द ब्यूटी ऑफ द सिनेमा ना. सो आई थिंक वी आर स्टिल कंडीशन्ड टू वॉच नॉनसेंस. आई होप दैट चेंज. ब्यूटीफुल. वैसे चेंज होगा नहीं होगा तो मैं नहीं कह पाऊंगा. हाँ, बट एक और चीज which makes me sad is that सबकी कंडीशनिंग बॉम्बे में ऐसी हो चुकी है फिर आपको लगेगा इससे अच्छा इंसान उन्हें आज तक नहीं मिला. हाँ, क्योंकि हम हर टाइम एक्टिंग करते हैं. हाँ, तो मतलब वो और मैं ये नहीं कहूँगा बॉम्बे इज बैड. आई थिंक दे सुपर पीपल, सुपर टैलेंटेड पीपल, वेरी नाइस पीपल. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट उनको आज तक वैसे ही लोग देखने को मिला तो शायद वो भी वैसे ही बन गए. क्या ये मानते हो आप इस बात को? क्योंकि कंडीशनिंग वैसी ही हो गई लोगों से मिल के. हाँ, हो गई है. और वो बुरे नहीं है. और एक और बात बोलूं, हाँ, एक्टर्स ना अपना सर्कल को छोटा कर देते हैं बिकॉज इन द एंड दे आर स्टार्स. ओके, वो अपना सर्कल इतना छोटा कर देते हैं कि वो बाहर की दुनिया से मिलना ही चाहते. और वो जो छोटा सर्कल कर देते हैं ना, दे इन कोर्स ऑफ टाइम दे स्टार्ट लिविंग इन द बबल. उनको 10 लोग जो बताते हैं वो उनको वही सुनते हैं, 10 लोग जो उनको न्यूज़ देते हैं वो सुनते हैं. वो जो एक प्रोग्रेशन, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ होता है ना, वो बंद हो जाता है. तो वैसे ही आई थिंक स्टक अप इन लाइफ, लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड दैट वी आर टू बिग, वो वैसे उसमें थॉट में जीने लग जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ग्राउंडेड, टू बी ओपन टू एनीबॉडी एंड लिव इन दिस इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री में आप किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर की मूवी के बारे में क्रिटिसिज्म कर लो, हाँ, झेला ही नहीं जाएगा. अच्छा, एक और चीज़ तो मैं ना आज तक कभी समझ नहीं पाया, मतलब मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आई. एक बार मैंने पंकज त्रिपाठी सर का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें बोलते हैं कि मैंने बड़ी गाड़ी इसलिए खरीदी है कि कोई मुझे छोटा स्टार ना समझ ले. तो जो लेबलिंग है कैसे हो रही है, वो इतने बढ़िया कलाकार हैं बट फिर उन जैसे को भी अगर लेबल झेलना पड़ रहा है तो बाकियों का तो क्या ही है. नहीं, आई थिंक उनको तो झेलना ही नहीं चाहिए. I honestly feel that should be a personal thing कि तुम्हें मुझे लगता है जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो. एक बड़ी गाड़ी से और एक सुंदर घर से कुछ नहीं होने वाला. किसी ने अगर तुम्हें काम नहीं देना, वो बड़ी गाड़ी देख के तुम्हें काम देगा ऐसा नहीं. अगर उसे नहीं देना तो रेंज रोवर में भी आ रहे हो, दे ही देगा. So वो तो एक, I think that is the insecurity that you have within yourself. I don't think so that's true. Fancy cars, it's just something that I think. उसदा मैंने पूरी बात नहीं कंप्लीट की. उन्होंने शायद ऐसा बोला था कि बड़ी गाड़ी इसलिए ले ली कि मुझे कोई ये ना कहते कि छोटे एक्टर को कास्ट कर लिया. अब मुझे नहीं पता है कितना सही है गलत होना चाहिए. I think उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, उन्होंने ऐसा. Exactly. एक तो सब देखो, सब इतने छोटे मुकाम से आके उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस ले ली है ना कि यू नेवर नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. एज आई सेड, मतलब बेइज्जती होती है, इंसल्ट्स होती है, नीचा दिखाया जाता है, सब कुछ होता है एक्टर्स की जर्नी में. दे हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग. सो जब तुम उन चीज़ों से गो थ्रू करते हो, एक तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाता है. देन यू फियर दैट टू हैपन टू यू अगेन. सो प्रोबेबली दैट्स द थिंग. उनके साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा अगर उन्होंने ऐसा. एक और चीज़ मुझे ना बहुत, जब मैं किसी से मिला हूँ तो मुझे एक बड़ा चीज़ देखने को मिलती है. लोगों के ना एंटाइटलमेंट बहुत है. जैसे आपने बोला बबल है छोटा सा कि खुद ही अपने दिमाग में स्टार है, और वो स्टार नहीं है वैसे. नहीं, कुछ लोग मैं बता रहा हूँ, हाँ, दे आर डूइंग गुड, बेटर देन अदर्स, आई अग्री ऑन दिस, बट इन देयर हेड ना दे आर एंटाइटल्ड दैट दे आर स्टार, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ग्रोइंग. इज इट करेक्ट? आई फील दिस थिंग. बहुत लोगों में ऐसा होता है. Yeah, they eventually stop getting.
Yeah, when that entitlement comes to your head that you become too big for your own shoes, you do stop getting work. And I think every actor goes through that phase. Every actor that becomes big, वो ही है, अगर तुम बिना हार्डवर्क के बड़े बन जाते हो ना, जो बहुत एक्टर्स बन चुके हैं, उनको लगता है बस हम ही और कोई है ही नहीं, और वो बहुत जल्दी फॉल हो जाते हैं. Everybody who has gone through now, Pankaj sir has been in this industry since long. He's seen and struggled. Manoj sir, they have struggled and they are where they are today. वो नहीं ऐसा बोलेंगे, वो नहीं ऐसा सोचेंगे. बिल्कुल. So वो एक जर्नी है जो तुमने इस इंडस्ट्री में ली है. It's unfortunate, मैं हमेशा बोलती हूँ, it's unfortunate कि किसी को बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है और किसी को कभी कुछ नहीं मिलता. वो लाइन है ना, क्या नाम है, सिद्धार्थ, आई फॉरगेटिंग हिज कंप्लीट फुल नेम. तो सिद्धार्थ बोलता है कि जहाँ पे लोगों के सपने नहीं जहाँ पे लोगों के सिद्धार्थ चतुर्वेदी से जहाँ शुरू नहीं, जहाँ पे लोगों की स्ट्रगल शुरू होती है वहाँ पे आपकी, जहाँ पे लोगों की स्ट्रगल खत्म होती है वहाँ पे तुम्हारी शुरू हो रही है. समथिंग लाइक दैट. जहाँ पे लोगों के सपने शुरू होते हैं, जिनकी बात है, वहाँ हमारे पूरे हो जाते हैं, है ना. क्योंकि आपको यहाँ पे अपना, मेरे को तो छोटी सी फिल्म मिली है किसी बड़े स्टार की, उसको उसने बोला कि मेरे को ब्रेक मिल गया, कांट बिलीव दिस थिंग. तो है ये भी सैड. It's a very unfortunate part of the industry that somebody will get something without any struggle. और बहुत ही मतलब अप एंड डाउन है, और कई लोग 10-15 साल जी लेते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता. How do you justify that? And even I have thought about that so many times, that what is it that I am not doing and others are doing that they have gotten there with so much ease. Then, I mean, that's the question I used to ask myself a lot. Because तुमको लगता है कि तुम इतने साल से तुमने इतना काम किया, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम एक बेहतरीन एक्टर हो, तुम अच्छी दिखती हो, तो तुम क्यों नहीं वहाँ पे हो जहाँ पे दूसरी एक्ट्रेसेस हैं. So I had to make myself understand and come to terms with the fact that, you know, it's your destiny. It's your karma. Maybe that's not for you. That will never be bigger picture in the future. Yeah. तुम्हारी destiny में शायद यही लिखा, और तुम इसी से खुश रहो. अपना hard work करते रहो. Keep doing your hard work. You will get what you deserve. But you will never get what is not written in your destiny. So why crimp? So I have really made myself understand that fact. If I'm not there, maybe that's not written in my destiny. I will keep keep working hard, and I will get what I deserve. Why run? बिल्कुल. एक टर्म ऐसे आजकल बहुत चलता है, मैनिफेस्टिंग वाला. अगर फिर इसमें तो लोग ऐसे कहेंगे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही आपके साथ होगा. यार मैं मैनिफेस्टेशंस नहीं करती. मैं तो टर्म आजकल यूज होता है फ्रीक्वेंटली, तो मैं इसलिए कि आप नेगेटिव एनर्जी कर लेके आ रहे हो. मैनिफेस्टिंग नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है. आई थिंक दिस नहीं, लोगों के हिसाब से बोलते हैं अरे ये तो बहुत नेगेटिव हो रही है. नहीं वो होता है, आप ड्रीम करो वही बन जाते हो. तो एक साल से मैं भी बहुत ड्रीम कर रहा हूँ. तो आई एम सेइंग, अगर मैं ये भी ड्रीम्स पूरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं. एफर्ट मारना जो है, एफर्ट आप कितना अप्रिशिएट करो उस पर डिपेंड करता है, ना कि वो जो आपने बेंचमार्क सेट किया था. तो जहाँ से शुरू किया था वहाँ से कहाँ पहुंचे, वो मैं मानता हूँ. राइट. और वो वाली चीज तुम जस्टिफाई कैसे करोगे कि दो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, दो बहुत खूबसूरत लोग हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? क्यों है ये? दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं. Why is that? Do you have any answer? The answer I gave to myself is destiny. Maybe that's what is written in her destiny, and maybe that's what is written in my destiny, because I can't justify that with any other logic. नहीं, ये बात सही है. ऐसा हर कोई अगर सब बन जाएगा तो फिर चलेगी कैसे दुनिया, है ना. हर किसी की अपनी जरूरत, हर लेवल पे इंसान की जरूरत है, हर लेवल पे हर जानवर की जरूरत है, हर लेवल. तो ऐसा नहीं कह सकते ये खत्म हो जाएगा मैं बन जाऊंगा. टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट. अच्छा, मुझे एक ये जो कंपैरिजन ऑफ दिल्ली और बॉम्बे है, ये तो मैं फिनिश करना चाहता हूँ. मतलब कौन सा शहर आपको लगता है कि यार कि इन टर्म्स ऑफ बॉम्बे अच्छा है या दिल्ली अच्छा है? मैंने अभी आपको बोला ना, जनरली मुझे लगता है दिल्ली रहने के लिए अच्छा है, बॉम्बे काम करने के लिए बहुत अच्छा है. There are a lot of opportunities in one way that you will get, which you will not get in Delhi. Delhi में peace है, बॉम्बे में peace नहीं है, because everybody is running after something. Happiness index बड़ा छोटा है. Happiness index छोटा है यहाँ पे. तो लोग इतने खुश दिखते हैं, उतना है नहीं, छोटा ही तो है. Yeah, because they're running after something all the time. बॉम्बे में काफी laid back, दिल्ली में काफी laid back. The character of that city is very laid back.
बॉम्बे में ऐसा नहीं है. दिल्ली में इतने लोग बाहर से आके काम नहीं ढूंढ रहे हैं, आप पूरी दुनिया से आके काम ढूंढ रहे हैं. एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पे अकेले रहने का कल्चर बहुत है. दिल्ली में आप देखती हैं, दिल्ली में सारे फैमिलीज इकट्ठे रहती हैं. यहाँ पे तो माँ बाप और अगर माँ बाप है वो अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं. वो दे आर लिविंग इन द सेम सिटी बट दे आर लिविंग सेपरेटली. आई हैव नॉट सीन दैट इन दिल्ली. इन फैक्ट व्हेन आई केम टू बॉम्बे इट रियली शॉक्ड. कल्चर शॉक लगा. या कि जब एक ही फैमिली है तो इकट्ठे रहो ना, अलग अलग क्यों रह रहे हो? ये तो हर शहर में देखने को मिल जाएगा आपको. रियली? हाँ. दिल्ली में कहाँ है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है. वो तो अब माइंडसेट के ऊपर है, कैसा इंसान सोचता है. सो ये जो अकेले रहने का कल्चर है ना बॉम्बे में, it gives a different flavor to the city. Everybody's fiercely independent. I've not seen that in Delhi. Fiercely independent. They want to be there. They are running behind money, which is in a way very sad at times. All the time. Workaholics है. तो वो इस सिटी को बहुत अजीब बना देता है. So इसलिए probably happiness index छोटा है, क्योंकि you don't really sit back and say कि चलो आज मैं कुछ नहीं करता, आज मैं सिर्फ चिल करूँगा. ये नहीं होता बॉम्बे में. चिल होता ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आसपास के लोग चिल नहीं कर रहे, तुम अकेले कैसे चिल कर दो? चिल कर दो, चिल में रह जाता है. हाँ, एग्जैक्टली. आसपास के लोग भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मैं पीछे ना रह जाऊँ. फोमो हो जाता है कि मैं पीछे ना रह जाऊँ. आई वांट टू डू समथिंग. कोई ऐसा को एक्टर आपके इसमें अभी तक जो आपको लगता है यार, या फिर कोई ऐसा एक्टर आपको जो लगा कि यार आई अप्रिशिएट दिस पर्सन की, यार इनके साथ काम किया और बहुत अलग एक्सपीरियंस था? किसी आप अच्छे, जब in the full circle of evil people you have to choose the lesser evil. I'm just saying this thing. Wow, lesser evil. Evil तो कभी, जैसे आपने बोल दिया मर्दों पे स्टैम्प लगाया, तो evil तो है ही वो. तो मैं lesser evil की बात कर रहा हूँ कि who is the lesser evil. Yeah, you know, I feel तुम जैसे होते हो ना, लोग तुम्हारे साथ वैसे होते हैं. मेरे साथ honestly इस इंडस्ट्री में बहुत pleasant experiences हुए हैं. मेरे साथ कुछ खराब experience हुआ नहीं है. I have worked with brilliant people like Safed. I just finished Safed. Sandeep is a brilliant guy. Young, passionate, very ambitious. He will be your friend and he will stand by you no matter what. बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे. I really hope कि उसको जो सक्सेस वो एक्सपेक्ट करते हो उसको मिलनी चाहिए. ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए. बाहर से आया हुआ है. He's come from Bihar. He came from absolutely no background. He's made a mark for himself all alone. I've seen in his career nobody stood by him. You know, single guy who's just going ahead. So I think ऐसे लोगों को सक्सेस मिलनी चाहिए, और ये सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए for you know other people to get inspired and come here. ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी तो बाहर से लोगों की हिम्मत कैसे होगी आने की? फिर जितना दिखता है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है अंदर आना एक आउटसाइडर के लिए. उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है जितना दिखता है. बहुत डिफिकल्ट है. बहुत डिफिकल्ट है. See, if I take my example only, I came from a very solid background of South films. I had done 25-30 films. Ankit, I'm not kidding. When I came to this industry, I was so confident. I was overconfident. I'll crack it in 3 months. I kept saying no to small movies because I thought I deserve fucking big because I have so much of work experience with me. Didn't happen. I fell down so badly. I literally saw the reality and I was like, okay, let me be real now. Let me face the reality. So I think it's difficult than what it seems. And now it's been 8 years, it's still difficult. I always say that after every movie that I finish, my struggle starts again. I have to start struggling. So now you're getting married, so I have to ask you this question also. कि what is your, क्या बोलते हैं उसे, what is a person like me don't know when to settle down, right? Or आप settle down. You want to settle down? नहीं, I'm just asking. So I'm just asking. Are you dating? नहीं, I'm not dating. I'm just asking you. You want to just नहीं, आपसे ये सवाल बनता है पूछना कि कैसे पता लगता है कि इंसान को कि अब this is my right time. लेबल तो अर्ज लगता है, आप 32 हो, शादी नहीं कर रहे हो, अब you're 38. कैसे पता लगता है कि now this is my high time? जो नॉर्म है ना लड़कियों के लिए कि 30 में शादी होना जानी चाहिए, 32 में हो जानी चाहिए, 35 तक हो जानी चाहिए. बच्चे लेट होंगे तो आप बूढ़े हो जाओगे. बच्चे होंगे ही नहीं. 35 के बाद अगर शादी करते तो बच्चे होंगे ही नहीं. लेट क्या होंगे? अच्छा. I'm getting married. I'm 38. So for me, तो it's like
हाँ. When I told my parents I'm getting married, Huh. they were no. When I told my parents that I found a guy and I want to get married, they were not happy. They were shocked because they told me, "हम तो ये expectation, we had lost this expectation that you would ever get married." Because उनके mind, उन लोगों के mind पे मैं बहुत late हो चुकी थी कि अब शादी तो ये करेगी नहीं. Why 38 is बहुत late? I think marriage should never have an age, and especially when it comes to girls, you should never give a time frame or one age limit कि इस साल तक शादी हो जानी चाहिए, because then girls end up taking wrong decisions in the societal pressure कि मुझे अभी तक शादी करनी है तो इससे शादी करना. Happened with me also, didn't fall for it. I think the right time to get married is when you find the right guy. और उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं वैसे? See, right guy होता है कि you accept his flaws and you accept his qualities. There are very few people जिसकी तुम बुराइयां comfortably accept कर. Because we are so impatient right now, we just reject people like this because there are so many options available in this world. We are living in a digital era where there are 10 dating apps where you can go on a date every day with two people. बिल्कुल. So why would you accept anybody's flaws? You will say कि अरे मुझे तो इससे better मिल जाएगा. जब वो वाली चीज आपके दिमाग में चली जाएगी ना कि मुझे इससे better चाहिए ही नहीं और इसके जो flaws हैं, I am very okay with it. I think that is the right time to get married. आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको फ्री करते हैं आप. बट ये क्वेश्चन मुझे पूछना था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू बिलोंग फ्रॉम द चोपड़ा फैमिली ट्री. आपका पूछ लिया ना ये क्वेश्चन, मतलब पूछ लिया. नहीं पूछ लिया, बिल्कुल. और ये पूछ लिया, गलत वे में नहीं पूछूंगा, इसे पॉजिटिव वे में पूछूंगा. आप किसी ट्री से बिलोंग करते हो, इट्स ओके, फाइन, कंप्लीटली. आप मानते हो कि जरूरी नहीं है कि आप उस ट्री से बिलोंग करते हो, उससे हेल्प की तरफ मुड़ो ही मुड़ो. कभी कभार आप खुद से जो ब्रिज बन के खड़े रहते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो वो ट्री ने कभी कुछ बेनिफिट दिया ही नहीं. तो ये अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए है? मेरे लिए वो बुरा हुआ था. अच्छा, बुरा हुआ. मैं वही आपका एंगल जानना चाहता हूं. मेरे लिए कुछ फायदा नहीं हुआ था because what happened in the starting when I came, everybody knew that प्रियंका की बहन है. So जो छोटी मूवीज मुझे ऑफर होती थी मैं करती नहीं थी क्योंकि मुझे था मैं तो बड़ी पिक्चर करूंगी और बड़ी पिक्चर कभी मेरे पास आई नहीं बिकॉज मेरे दिमाग में था कि मैं बड़ी पिक्चर करूंगी, मैं तो डिजर्व करती हूँ. तो वो चीज़ मुझे तो बैकफायर करी. उस बार्गेन में मैंने जो आई वुड नॉट से छोटी जितनी भी मिड लेवल की पिक्चर्स थी मैं मना करती रही. बट लोगों के दिमाग में उनको फर्क नहीं पड़ा कि प्रियंका की कोई बहन आई है. दे डिडंट केयर अ फक. सो आई डोंट थिंक सो मुझे उससे कुछ फायदा हुआ. इनफैक्ट मेरी स्ट्रगल और डिफिकल्ट हो गई और लंबी हो गई बिकॉज जब तुम एक पिक्चर कर लेते हो तो फिर एक नॉट इन माई माइंड बट इन द माइंड ऑफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स एक वो तो आ ही जाता है कि उतनी टैलेंटेड है क्या जितनी वो है. नहीं हूँ मैं उतनी टैलेंटेड यार. मुझे आप उसकी बहन की तरह मत देखो, मुझे एक इंडिविजुअल की तरह देखो जो साउथ में बहुत सारी पिक्चरें करके आई. मुझे एक अकेली लड़की की तरह देखो. बट वो होता नहीं है. The comparisons is always there. are always there. And it's very difficult to match up to that level. It's impossible. Not everybody is again destiny. Again destiny. Yeah. Must be our destiny. She is extraordinary. I think प्रियंका जैसे लोग एक ही बनते हैं. दूसरा नहीं हो कोई प्रियंका चोपड़ा बन सकती. मैं कभी नहीं बन सकती, मैं बनना भी नहीं चाहूंगी. मेरे को अपनी जर्नी जीनी है तो मेरे को अपनी जर्नी के हिसाब से देखो. बट कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने देखा नहीं. सो आई थिंक दैट कंपैरिजन ऑलवेज बैकफायर्ड. वो जो सारा इतनी टैलेंटेड है, उतनी अच्छी एक्टिंग करती है, वो हमेशा सबके दिमाग में वो क्वेश्चन था. ये बात तो मैं भी मतलब कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि आई थिंक if you'll ask me, I think Abhishek Bachchan is a fabulous actor. But if you compare with his father, I will never say that he can replace Mr. Bachchan. Yes. So people never saw him in isolation. Exactly. So I'm saying ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऐसा क्यों बोलना है कि वो उनसे बहुत अच्छा कर दे. जो उन्होंने करा वो तो रिप्लेस ही नहीं कर सकता. वो तो अच्छे से बड़ा एक्टर रिप्लेस नहीं कर सकता. आई थिंक उनका एक अपना स्टाइल है. वॉच हिज मूवी गुरु, फैब. Yes, right. I am saying तो ये जो आपने बात बोली तो मैं इसमें एग्री करता हूँ. ऐसा है. आइसोलेशन में ना लोग देखना बंद कर देते हैं बिकॉज तुम्हारा कंपैरिजन इतने बड़े बेंचमार्क से हो रहा है कि तुम उसको कभी छू ही नहीं पाओगे. तो
कभी करो उल्टे के लिए हो जाता है, अच्छे के लिए नहीं होता. अच्छे के लिए नहीं होता. So you need to see. I always say that you अभी भी in a lot of places it really bothers me when people write Priyanka Chopra's sister. अच्छा. अरे why do you write that? हाँ. You don't have to write Priyanka. बट मुझे कल ही पता चला तो मैं इसलिए पूछ लिया. That's not my identity. हाँ. Okay, and I don't want that to be my identity. I've done enough work to be like Meera Chopra. Again, this thing comes. We haven't invited you because you're Priyanka Chopra's sister, right? We have invited because you're Meera Chopra, right? So I'm saying ये तो बड़ा गलत रास्ता है ये आप. Yeah, but that is one unfortunate thing that people stop seeing you in isolation when you are compared to somebody who's too big. हाँ. वो एक हो जाता है. वो I think बहुत लोगों के साथ इंडस्ट्री में हो रहा है और अभी तक होता जा रहा है. Beautiful. So thank you for coming to Impact Stories. Thank you so much. Hope आपको मजा आया हो बात करने. Great talking to you. Same here.